Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My dear students, as discussed in previous lecture, that we have started the very important portion of corporate law, that is the share capital. And in previous lecture, we have done with the prospectus of a company. The topics taught you were the prospectus, the definition of a prospectus, about the contents of a prospectus, requirements relating to the prospectus, and the liabilities arising out of untrue statement in a prospectus. And then the topic taught was the statement in lieu of prospectus. So अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि प्रोस्पेक्टस क्या चीज होती है, और यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि प्रोस्पेक्टस इज एक्चुअली अ सर्कुलर पब्लिश्ड बाय द प्रोमोटर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. एंड व्हाई इज इट पब्लिश्ड? इट इज पब्लिश्ड टू इंड्यूस द पब्लिक टू टेक शेयर्स इन द कंपनी. सो मैंने आपको बताया प्रोस्पेक्टस क्या चीज होती है. प्रोस्पेक्टस इज अ सर्कुलर published by the promoters after the formation of the company, and this is published to induce the public for purchase of shares. हम इस डॉक्यूमेंट, इस सर्कुलर के जरिए से लोगों को अपनी कंपनी की तरफ, अपनी कंपनी के शेयर्स को परचेज करने की तरफ रागिब करते हैं. फिर मैंने आपको बताया about the contents of the prospectus. I've told you that prospectus must always be a fair representation of the company. It must based on true, and it must be a true copy, a true verdict. इसमें कोई भी गलत बयानी नहीं होनी चाहिए, because the investors, they rely on the prospectus, they invest money in the company on the basis of this prospectus. So the prospectus must always be a fair representation of the company. और इसके contents को जब हम देखते हैं तो हमें prospectus के बारे में तमाम चीजें, तमाम बातें समझ में आ जाती हैं. So I have told you about the contents of the prospectus, and then the topic taught was the requirements relating to the prospectus. यानी prospectus must always be dated, and that date should be the publication date. It must include an auditor's report on last 5 years loss and profit account, and it must be published not less than 7 and not more than 30 days before the subscription date. फिर इसकी एक और रिक्वायरमेंट प्रोस्पेक्टस की जो है वो ये है, द प्रोस्पेक्टस मस्ट इंक्लूड द स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्सपर्ट. तो जब प्रोस्पेक्टस के साथ हम लगाते हैं एक्सपर्ट की स्टेटमेंट, सो एक्सपर्ट एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि गैर जानिबदार हो. द एक्सपर्ट मस्ट नॉट बी इन्वॉल्व, he should not have any interest in the company. He must be a person who is not involved in the management of the company, in the formation of the company. So expert को एक गैर जानिबदार बंदा होना चाहिए, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस के साथ लगी हुई होती है. So जब भी हम लिस्टेड कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है तो हमें SECP की कंफर्मेशन विद इन 60 डेज हासिल करनी होती है. सो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स थी जो कि मैंने आपको बताई अबाउट द प्रोस्पेक्टस. देन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक टॉट वाज द लायबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ अनट्रू स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस. कि अगर प्रोस्पेक्टस में
कोई चीज गलत बयानी है, कोई चीज अनट्रू है, झूठ है पर मबनी है, तो और उसके बेस पर कोई उस पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कोई भी लॉस या डैमेज हो सकता है. सो व्हेन देयर अराइज एनी मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, देयर shall be two liabilities, civil liability and criminal liability. And I've clearly mentioned in my previous lecture that there are defenses available to on the basis of those defenses you can take a plea that you are not liable for any such civil or criminal liability arising out of untrue statement. यानी कुछ grounds हैं, कुछ defenses हैं जिनको अगर proof कर दिया जाए तो उस untrue statement का, prospectus की untrue statement का फिर वो बंदा liable नहीं होता. उसको proof क्या करना है? उसको proof क्या करना है कि he withdrew his consent before the issuance of prospectus. कि वो तो उसने तो खुद ही बैकअप कर लिया था प्रोस्पेक्टस के इशू होने से पहले ही. फिर जब वो ये कहे that the prospectus was issued without his knowledge, कि प्रोस्पेक्टस मेरी नॉलेज के बगैर ही छपा है तो I am not related, not linked with this prospectus, तो तब भी हम उसको लायबल करार नहीं दे सकते. सो इस तरह के और ग्राउंड्स थे जो मैंने आपको बताए और जो कि अगर वो प्रूफ करने पर नो पर्सन शैल बी लायबल फॉर कंपनसेशन और लॉस और डैमेज सस्टेन्ड ड्यू टू अनट्रू स्टेटमेंट. फिर मैंने आपको बताया कि व्हाट विल बी द सिविल लायबिलिटी ऑफ द एक्सपर्ट, द सिविल लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स. और उसके साथ मैंने आपको बताया कि हम एक्सपर्ट को अनट्रू स्टेटमेंट के लिए फुली जिम्मेदार नहीं करार दे सकते, बिकॉज ही इज नॉट द पर्सन इन्वॉल्व फॉर द ऑथराइजेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस. वो सिर्फ एक्सपर्ट उस स्टेटमेंट तक जिम्मेदार होता है जो कि उसने दी होती है और उसको सच होना चाहिए. वो गलत साबित होगी तो एक्सपर्ट उसके लिए लायबल करार दिया जा सकता है. असल में लायबल कौन होता है? असल में लायबल होता है डायरेक्टर. इसीलिए मैंने आपको कहा डायरेक्टर सिविल लायबिलिटी एक्सपेंड्स टू द होल ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एज ही इज द वन who have authorized for the issuance of prospectus. He is the one who is responsible for the issuance of prospectus. So हम डायरेक्टर को लायबल करार देते हैं. Then the topic taught was statement in lieu of prospectus. When the prospectus is not prepared by the company and when the prospectus is mandatory, then the company file a statement in lieu of prospectus, a statement instead of prospectus. So ये वो topics थे जो हमने पिछले lecture में पढ़े. मैं इसका रिकैप देना, इसका रिव्यू देना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ कि जब आप पिछला लेक्चर पढ़ते हैं तो उसको फिर हम अगले से रिलेट कर सकते हैं. शेयर कैपिटल के पोर्शन में एवरीथिंग इज लिंक्ड. पिछला जहन में जब आएगा तो उसके साथ आप अगला समझते जाएंगे. सो दैट इज वाई द रिकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट लॉ. अब चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ. Our today's lecture is about the share. What is a share? What does it mean? What is share capital? And the classification of both shares and share capital. Now, what is a share? The Companies Ordinance 1984 defines share as share is a share in the share capital of a company. जरा इस डेफिनेशन पे गौर करें. शेयर क्या चीज है? A share is a share in the share capital of a company. यही डेफिनेशन ही आपको इसका पूरा मतलब समझा देती है.
शेयर होता है आपका हिस्सा। हिस्सा किस चीज में? शेयर कैपिटल में, क्योंकि ये शेयर्स असल में हमारे पास आते ही इस शेयर कैपिटल से है। हमने लोगों से लिया शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल फिर हमने लोगों को जो शेयर्स अलॉट किए, अब उससे जो प्रॉफिट होता है वो लोगों का शेयर होता है, लोगों का हिस्सा होता है, और वो हम फिर वी असाइन इट टू डिफरेंट पीपल, वी अलॉट दीज शेयर्स टू डिफरेंट पीपल in proportion to the number of shares taken by them, the type of shares they have applied for. So share क्या चीज है? Share is a share in the share capital of a company. शेयर कैपिटल में शेयर होल्डर का हिस्सा वो शेयर कहलाता है। इन अ केस ऑफ बॉरलैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड लिमिटेड, इट वाज हेल्ड दैट अ शेयर रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर। शेयर क्या चीज बताता है? शेयर से हमें पता चलता है शेयर होल्डर का मफाद, द इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर in the capital of the company. Shareholder का मफाद is represented by the share capital of the company, and this interest is measured by the number of shares he is holding and the amount paid by him to the company on shares. यानी हम किसी भी शेयर होल्डर का क्या इंटरेस्ट है उस कंपनी में, हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने कितने शेयर्स लिए हैं। सो वी कैन मेजर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर बाय द नंबर ऑफ शेयर्स ही इज होल्डिंग एंड द अमाउंट पेड बाय हिम टू द कंपनी ऑन शेयर्स, कि उसने कितना सरमाया लगाया है और उसके कितने शेयर्स हैं, उतना ही उसका उस कंपनी में इंटरेस्ट होगा। Thus, the amount of capital to be raised by a company is always divided into small parts or units of equal value, and these units are called shares. Capital raised by a company, the company has raised the capital, and then we have divided that capital into small units, and we call these small units as shares. So, what is share? Share is a right to receive a certain proportion of the profits made by the company while the company is a going concern, and of the capital when it is wound up. तो शेयर आपका हक है, शेयर होल्डर का राइट है कि वो रिसीव करे अ सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट। यहां पर गौर करें लफ्ज सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, यानी तमाम शेयर होल्डर्स को एक जैसा प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा सर्टन प्रोपोर्शन, जितना उसने शेयर्स लिए हैं, जितना उसने कंपनी को पैसा दिया है, उस हिसाब से उसे प्रॉफिट मिलेगा। सो हम कहते हैं व्हाट इज अ शेयर? शेयर इज अ राइट टू रिसीव अ सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ profits made by a company while the company is a going concern, and of the capital when it is wound up. Share includes stocks. Share is always a movable property transferable in a manner provided by the articles of association of the company. Yani if I am having some shares in a company, and so I can transfer my shares to anyone I want, because share is a movable property. We can convert it and the other person can become a shareholder if I want to transfer my share to some other person. So the salient features of share capital of a company is collected by issuance of shares. Share capital असल में अगर देखें शेयर कैपिटल आता ही शेयर से है। शेयर इज वन ऑफ द यूनिट्स इनटू विच टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड। द पर्सन हु ओन्स द शेयर इज कॉल्ड द शेयर होल्डर। मैंने आपको बताया कि हर बंदा एक
अलहदा शेयर होल्डर है। एक तरह के शेयर सबके नाम नहीं अलॉट होते, सो सबको एक जैसा प्रॉफिट भी नहीं मिलता, सबकी एक जैसी, हर शेयर होल्डर की हैसियत भी एक जैसी नहीं होती, ये वेरी करती है। इट डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ शेयर्स, जो जिस तरह के जोन से शेयर्स जिस बंदे ने लिए होंगे वो उस तरह का शेयर होल्डर होगा। फर्क क्या होता है? फर्क प्रॉफिट में होता है, फर्क वोटिंग राइट में होता है। सो मोस्ट कंपनीज, पहले ये था कि द कंपनीज यूजुअली दे वर हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ शेयर्स एंड दैट वाज द ऑर्डिनरी शेयर, द ऑर्डिनरी शेयर्स। बट it is increasingly common for even very small private companies to have different shares, different classes of shares. यानी पहले सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स होते थे, अब ये ट्रेंड हो गया है कि इवन स्मॉल प्राइवेट कंपनीज दे आर हैविंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स एंड दिस मे बी डन फॉर वेरियस रीजन, जिसमें कि एक रीजन ये भी हो सकता है टू बी एबल टू वेरी द डिविडेंड्स paid to different shareholders and to raise non-voting shares. यानी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को वोट का हक होता है, वोटिंग राइट्स उसके होते हैं, लेकिन कोई और शेयर होल्डर अगर होगा तो दैट शेयर होल्डर मे नॉट हैव द वोटिंग राइट्स। सो इस तरह डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स हमारे पास अब आते हैं। नॉन वोटिंग शेयर्स कैरी नो राइट टू वोट। जब हम कहते हैं ना नो वोटिंग शेयर्स, इट मीन्स दैट द शेयर होल्डर विल हैव नो राइट टू वोट एंड यूजुअली नो राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग ईदर। सो इस तरह अब हमारे पास ट्रेंड आ गया है कि हमारे पास ना सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं बल्कि उसके साथ साथ और भी डिफरेंट शेयर्स आ गए हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। मैंने आपको बताया शेयर क्या है, अब मैं आपको शेयर्स की क्लासेस बता रही हूँ। शेयर क्या है? शेयर होल्डर का राइट है उस मुनाफे में से जो कंपनी को हो रहा है। शेयर इज अ राइट टू रिसीव अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट मेड बाय अ कंपनी व्हाइल द कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न एंड ऑफ द कैपिटल व्हेन इट इज वूंड अप। ये शेयर है। अब क्लासेस ऑफ शेयर्स, we have the ordinary shares, preference shares, redeemable preference shares. अब आपने गौर करना है इसके सैलिएंट फीचर्स पे, और जब आप इन तीनों को अलहदा-अलहदा समझ जाएंगे तो तब आप इसमें क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकेंगे। सो इसकी क्लियर डिफरेंशिएशन के लिए जरूरी है कि आप इनके दरमियान में जो प्रॉफिट्स का फर्क है और वोटिंग राइट्स का फर्क है उसको समझने की कोशिश करें। ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स, एंड ऑर्डिनरी शेयर्स रिप्रेजेंट्स इक्विटी ओनरशिप इन अ कंपनी एंड entitles the owner to a vote in matters put before shareholders in proportion to their percentage ownership in the company. कुछ समझ में आई बात? नहीं, मैं आपको सिंपल करके बताती हूं। ऑर्डिनरी शेयर्स क्या है? ऑर्डिनरी शेयर्स, जब भी नाम आए ऑर्डिनरी शेयर्स तो आपके जहन में आना चाहिए कि इन ऑर्डिनरी शेयर्स द ओनर, द शेयर होल्डर, द ओनर ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स, दे विल हैव द राइट टू वोट इन द मैटर्स पुट बिफोर द शेयर होल्डर्स। अब कितने वोट वो डालेगा? दैट right to vote depends on the percentage of ownership in that company. That right to vote depends the money invested by that shareholder, कि उसने कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा मिलेगा, यानी in proportion to their percentage ownership in the company, यानी जितनी परसेंटेज के उसके शेयर्स हैं उतना ही उसके वोटिंग राइट्स होंगे। यानी वोटिंग राइट डिपेंड करता है उसकी परसेंटेज ऑफ शेयर्स पे। सो ये होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। ये ऑर्डिनरी शेयर का एक सैलिएंट फीचर है
कि वोट का हक होता है शेयर होल्डर को। जब एक बंदे के पास ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं तो उसको उस कंपनी में वोट करने का राइट होता है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड, आर एंटाइटल्ड टू रिसीव प्रॉफिट इफ एनी आर अवेलेबल आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड शेयर्स आर पेड। पहला सैलिएंट फीचर मैंने आपको क्या बताया ऑर्डिनरी शेयर्स का? मैंने ये बताया कि ऑर्डिनरी शेयर्स जिसके पास होते हैं उसको राइट टू वोट होता है। दूसरी बात, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द प्रॉफिट बट इफ देयर इज सम प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं होगा प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा। और जब प्रॉफिट होगा भी तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट तब मिलेगा जबकि प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को उसका प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस थोड़ी ज्यादा है। फर्स्ट द कंपनी विल हैव टू पे द डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये एक और किस्म है, एक और क्लास है शेयर्स की जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अब हम देख रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। पहली बात मैंने बताई राइट टू वोट होता है, दूसरी मैंने बताई प्रॉफिट मिलेगा ऑर्डिनरी शेयर्स वाले शेयर होल्डर को बट इफ प्रॉफिट इज देयर। सो इन सिंपल वर्ड्स, ऑर्डिनरी शेयर्स हैव राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स इफ अवेलेबल, right to share in surplus assets on winding up and voting rights. Now the preference shares. What are preference shares? Company stock with dividends that are paid to the shareholders before common stock dividends are paid out. So it means that we will pay the profit to the preferred shareholders before the profit is being paid to the ordinary shareholders. So, preference shares typically pay a fixed dividend, whereas common shares do not. Getting my point? मैंने आपको कहा कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसमें डिविडेंड शेयर होल्डर्स को, प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को मिलता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वालों से पहले। ये इनका एक सैलिएंट फीचर है। फिर आई हैव टोल्ड यू दैट द शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स टिपिकली पे अ फिक्स्ड डिविडेंड, उनको एक फिक्स मुनाफा मिलता है, जबकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को फिक्स मुनाफा नहीं मिलता, उनको प्रॉफिट तब मिलता है जब प्रॉफिट होता है। एंड अनलाइक कॉमन शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यूजुअली डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। एक और salient features, they will not have the voting rights. So the main benefit to have preference shares are that the investors has a greater claim on the company's assets than a common stockholders. यानी benefit क्या है preference shares में? अगर मैं चाहती हूं कि मुझे एक कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स मिले, वो इसलिए मैं चाहूंगी कि मुझे उसमें मुनाफा फिक्स मिलेगा। ऑल्दो आई विल नॉट हैव वोटिंग राइट्स, बट मुझे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले मुनाफा मिलेगा, और है या नहीं है मुझे फिक्स मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और उसके अलावा आई विल हैव ग्रेटर क्लेम ऑन द कंपनीज एसेट्स देन द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो ये होते हैं preference shares. Preference shareholders always receive their dividends first, and in the event the company goes bankrupt, preferred shareholders are paid off before common stockholders. In case of bankruptcy, the preferred shareholders will be paid off by the company even if the company is bankrupt. कंपनी का दिवालिया निकल गया है, लेकिन वो प्रेफर्ड शेयर होल्डर को कॉमन स्टॉक होल्डर से, शेयर होल्डर से, जिसको हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स भी कहते हैं, उससे पहले पे करेगी। सो अगेन सिंपल वर्ड्स में हम प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे कहते हैं? द प्रेफरेंस शेयर्स कैरी द राइट टू अ फिक्स्ड डिविडेंड,
have no voting right. Dividend may either be cumulative or non-cumulative. मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि what is cumulative और non-cumulative preference shares. अब तक मैंने आपको दो टाइप्स बताई शेयर्स की, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. ऑर्डिनरी शेयर्स कौन से होते हैं? The ordinary shareholders will have the right to vote. They will get the profit, but if the profit is available, preference shareholders, they will have the fixed dividend. They will have no voting right, and the dividend may either be cumulative or non-cumulative. Preference shares, इसको मैं आपको मजीद एलाबरेट करती हूँ ताकि आपको इसकी सही समझ आए. इसके मैं आपको दो प्रेफरेंशियल राइट्स बताऊंगी. वही मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपके जहनों में सही तरह से इसकी समझ आ जाए, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर्स को समझना बाजों का थोड़ा सा मुश्किल होता है. सो द प्रेफरेंस शेयर्स दे एंजॉय टू प्रेफरेंशियल राइट्स. डिविडेंड एट अ फर्स्ट फिक्स्ड रेट, डिविडेंड at a fixed rate or a fixed amount on these shares before any dividend on ordinary shares. Return of preference shares capital before the return of equity shares, ordinary shares capital at the time of winding up of the company. So what are the differences between ordinary shares and preference shares? Ordinary shares are the most common kind of shares. An ordinary shares gives the holder voting rights in the company and entitles the person to all dividend distributions as a part owner of the company. Preference shares allow holders to be paid dividend before ordinary shareholders, and they also have priority over assets claims if the company goes bust. The company goes bust, they will claim the assets of the company. The downside is the preference shareholders have a fixed dividend and only limited voting rights with respect to company affairs. The dividend on ordinary shares is uncertain and variable. यानी ऑर्डिनरी शेयर्स में प्रॉफिट की कोई सर्टेनिटी नहीं है. प्रॉफिट विल बी हाई व्हेन द कंपनी डज वेल एंड पुअर और नॉन एग्जिस्टेंट व्हेन द कंपनी डज बैडली. यानी अनसर्टेनिटी है प्रॉफिट में. Preference shareholders get a fixed dividend which, if not paid, usually accrues until it can be. Each ordinary shares usually carries a vote. Preference shares do not usually carry a vote unless dividends fall into arrears. When the dividends becomes the arrears, तब उनको वोट का हक हो सकता है. Preference shares may be issued with the right of conversion into ordinary shares. यानी a preferred shareholder can become the owner of a ordinary shares because the preference shares are the convertibles. यानी हम इसको preference shares को ordinary shares में convert कर सकते हैं. Cumulative and non-cumulative preference shares. With regard to the payment of dividend, preference shares may be cumulative or non-cumulative. जैसे कि मैंने आपको बताया, preference shares में क्या होता है? Fixed dividend, fixed profit मिलता है shareholders को. But if the profits of the company in any years are not sufficient to pay the fixed dividend, यानी कंपनी इस काबिल ही नहीं है, कंपनी को इतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ है कि वो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को, दी ओनर्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स वालों को फिक्स डिविडेंड दे,
तो उस सूरत में क्या होता है, द डेफिशिएंसी मस्ट बी मेड अप आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सीक्वेंट ईयर्स। यानी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं कि है तो ये प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन अगर कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन, कंपनी को प्रॉफिट उन सालों में नहीं हुआ, लेकिन उसने प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड देना है, सो वो डेफिशिएंसी उन सालों की पूरी होगी आने वाले सालों के प्रॉफिट से। द accumulated arrears of dividend must be paid before anything is paid out of the profits to the holders of any other class of shares. Non-cumulative preference shares. The dividend, the profit is only payable out of the net profits of each year. If there are no profits in any year, the arrears of dividend cannot be claimed in the subsequent years. Preference shares are presumed to be cumulative. यानी हमने हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स को कम्युलेटिव ही तस्वुर करना है, अनलेस एक्सप्रेसली डिस्क्राइब्ड एज नॉन कम्युलेटिव। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स होंगे हम उसको कम्युलेटिव तस्वुर करेंगे, लेकिन अगर उसके साथ क्लियरली लिखा होगा कि दीज आर नॉन कम्युलेटिव, तब हम उसे नॉन कम्युलेटिव तस्वुर करेंगे। अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज प्रिज्यूम्ड एज cumulative, and any ambiguous language in the articles will not be enough to make them non-cumulative. यानी usually हम प्रेफरेंस शेयर्स जिसमें फिक्स डिविडेंड मिलता है उसको हम कम्युलेटिव ही तस्वुर करते हैं। यानी कभी कभार अगर कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन कि उसको उन सालों में प्रॉफिट हो, तो वो डेफिशिएंसी आने वाले सालों के प्रॉफिट से पूरी की जाएगी। ये होते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। Redeemable preference shares. A preference share which must be bought back by the company at an agreed date and for an agreed price. Redeemable का मतलब ही यही है बाय बैक, जो कि वापस लिया जा सके। प्रेफरेंस शेयर्स ही होते हैं, लेकिन इसको कंपनी वापस ले सकती है और पहले से डिसाइड होता है कि जी इस तारीख को और इतने पैसों पर कंपनी ये शेयर्स वापस ले लेगी। सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच द कंपनी बाय बैक, व्हिच द कंपनी टेक बैक एट एन एग्रीड डेट फिक्स होती है कि कब कंपनी ये शेयर्स वापस ले लेगी, एंड फॉर एन एग्रीड प्राइस। प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। अब कंपनी की मर्जी होती है, कंपनी की ऑप्शन पे होता है कि वो कब ये शेयर्स वापस ले। मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का। ऑर्डिनरी शेयर्स में फिक्स डिविडेंड नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स डिविडेंड होता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच द कंपनी कैन बाय बैक एट एन एग्रीड डेट एंड for an agreed price, and that is the option of the company to take them back. Redeemable preference shares. The company issues redeemable preference shares for a specified time period. Limited time period के लिए होता है कि इतने अरसे से इतने अरसे तक कंपनी इन शेयर्स को इशू करती है और टाइम पूरा हो जाने पर उन शेयर्स को वापस लेती है। These shares are issued when the company has some growth and expansion plans in mind. The shareholders can choose the time to maturity on these shares. At the end of the stipulated period, they can choose to exchange these shares for either equity shares, ordinary shares of the company, or for cash. अब टाइम पूरा हो गया, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कंपनी ने वापस लेने हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल कंसेंट से ये हो सकता है कि व्हेन दी टाइम इज फिनिश्ड, the stipulated period is ended, then the shareholders can choose to exchange these shares for either ordinary shares or they can exchange them for cash as well. The shareholders are repaid the face value of the shares plus the dividends.
preferential payments. So preferential payments क्या होती है? ये इन शेयर्स पे जब हम प्रेफरेंस शेयर्स पे जब हम पेमेंट करती है, जब हम ये पेमेंट करते हैं तो उसकी सूरत हाल क्या होती है? As I've told you that preference shares are those shares जिसको हमने हमेशा प्रेफरेंस दी है over other classes of shares. So they get priority in payments. These payments pertain to both quarterly dividend payment as well as the payment that are made when the company is eventually liquidated. Then the assets are used first to pay the creditors of the company, and if the money still remains, the redeemable preference shareholders are paid. A majority of the time, redeemable preference shares are favored over other classes of preference shares as well. The next part is the share capital. We have done the share. Share क्या चीज है? 3 types of shares: ordinary shares, preference shares and the redeemable preference shares. उनके मैंने salient features आपको बार बार बताए हैं ताकि आपको अच्छी तरह आपका concept इनमें clear हो जाए. Now what is a share capital? Share capital. Share capital is actually the amount with which a business is started. वो सरमाया जिसे हम अपना business चलाते हैं, शुरू करते हैं. So share capital is actually the money invested in a company by the shareholders. वो सरमाया जो shareholders से हम लेते हैं, वो invest करते हैं company में और हम उसको कहते हैं कि ये एक long term source of finance है. So what is share capital? Share capital is actually the money invested in a company by the shareholders. Share capital is a long-term source of finance. In return for their investment, shareholders gain a share of the ownership of the company. यानी जवाब में जब shareholders ने investment की, what they get? They get the ownership of the company. Share capital, actually it is a joint stock company should have capital in order to finance its activities. It raises its capital by issue of shares. Company हमेशा share capital से ही अपने activities को आगे बढ़ाती है और the company always raises its capital by issuance of shares, and the memorandum of association must state the amount of capital with which the company is desired to be registered. यानी एक amount होती है जिससे company registered होती है, एक जो एक authorized amount होती है जिससे company registered होती है. So हमेशा कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि दिस इज द कैपिटल विद विच द कंपनी इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड एंड these are the number of shares into which this capital is going to be divided. So memorandum of association must contain the capital. पहली बात, memorandum of association must contain the capital with which a company is going to be registered and the number of shares into which this capital is going to be divided. When total capital of a company is divided into shares, it is called share capital. It constitutes the basis of the capital structure of a company. So in other words, the capital collected by a joint stock company for its business operation is known as share capital. मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि वो सरमाया जो कि कंपनी ने जमा किया अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं. So share capital is the total amount of capital collected from its shareholders for achieving the common goal of the company as stated in the memorandum of association.
There are different types of share capital. हमारे पास एक होता है authorized share capital. We may call it the registered share capital, the maximum share capital or a normal capital. ये इसके different नाम है. Then we have the issued capital, subscribed capital, called up capital and paid up capital. हमारे पास different types हैं share capital के. So now what is this authorized, registered or maximum capital? Authorized capital असल में क्या होता है? It is actually the maximum amount of capital, and this is the maximum amount of capital because the company issue this capital in accordance with the memorandum of association. इसको हम ऑथराइज्ड कैपिटल इसलिए भी कहते हैं कि ये वो कैपिटल होता है जो कंपनी को एलिजिबल करती है, कंपनी को ऑथराइज करती है, वो कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है. वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जिससे कंपनी रजिस्टर होती है. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज फ्रॉम द पब्लिक बाय द इशू ऑफ शेयर्स. इसलिए हम इसे कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल. हम इसको रजिस्टर्ड कैपिटल क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज द कैपिटल विद विच अ कंपनी इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड. सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट द रजिस्टर्ड कैपिटल. एक खास अमाउंट चाहिए होती है जिससे कम अगर होगी तो कंपनी उससे रजिस्टर्ड नहीं हो सकती. सो वो ऑथराइज्ड अमाउंट, ऑथराइज्ड कैपिटल जिससे कि कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसे हम कहते हैं द रजिस्टर्ड कैपिटल. रजिस्टर्ड कैपिटल. इशूड कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा which is offered by the directors or promoters. यानी हमारे पास एक कैपिटल है जिसको हम कहते हैं the authorized capital, and usually क्या होता है? Usually the company does not issue its authorized capital to the public for subscription but issues a part of it. यानी कंपनी सारा का सारा authorized कैपिटल पब्लिक को इशू नहीं करती, इसका एक हिस्सा इशू करती है. जो हिस्सा इशू किया जाता है असल में वो ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक, उसको हम कहते हैं द इशूड कैपिटल. कुछ समझ में आई बात? देखिए, एक कैपिटल जो हम शो करते हैं जिससे कि कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसको हम कहते हैं द ऑथराइज्ड कैपिटल. नाउ a company does not issue all of its authorized capital to the public and instead issues a part of it. So the issued capital is a part of authorized capital which is offered to the public for subscription, including shares offered to the vendor for consideration other than cash. So the part of authorized capital not offered for subscription to the public is known as unissued capital. Such capital can be offered to the public at a later stage. मतलब क्या हुआ? ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल जिसे कंपनी रजिस्टर्ड होती है लेकिन कंपनी अपनी इस तमाम ऑथराइज्ड कैपिटल को इशू नहीं करती. दी कंपनी एक्चुअली इशूज अ पार्ट ऑफ इट. तो जो पार्ट इशू किया जाता है असल में उसको हम कहते हैं दी इशूड कैपिटल, और वो पार्ट जो इशू नहीं किया जाता और वो बाद में इशू किया जाता है उसको हम कहते हैं दी अनइशूड कैपिटल. सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल टेकन बाय द पीपल, जो कि कंपनी ने इशू तो कर दिया है लेकिन जब असल में लोगों ने उसको ले लिया है, टेकन बाय द पीपल, देन वी कॉल इट द सब्सक्राइब्ड कैपिटल. इट कैन नॉट बी said that the entire issued capital will be taken up or subscribed by the public.
एक रकम जो कि ऑथराइज्ड कैपिटल थी, उसमें से जो कि इशू की गई, जो कैपिटल इशू किया गया उसको हम इशूड कैपिटल कहते हैं। उस इशूड कैपिटल में से द अमाउंट विच इज टेकन बाय द पीपल इज कॉल्ड द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, and it may be subscribed in full or in parts. The part of issued capital which is subscribed by the public is known as the subscribed capital. Called up capital. It is that part of subscribed capital which is called by the company to pay on shares allotted. हमने जो इशू किया उसको हमने कहा इशूड कैपिटल, उस पे जो सब्सक्राइब किया गया लोगों ने जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हमने कहा सब्सक्राइब कैपिटल। लेकिन जिस पर असल में पे किया उसको हम कहते हैं दी कॉल्ड अप कैपिटल। जिस पे कंपनी ने कहा कि इस पे करो इन शेयर्स पर, उसको हम कहते हैं दी कॉल्ड अप कैपिटल। It is that part of subscribed capital which is called by the company to pay on shares allotted. वो shares जिस पे असल में पे किया गया, that is the called up capital. It is not necessary for the company to call for the entire amount on shares subscribed for by the shares. यानी subscribe तो सारा हुआ, लेकिन सारे पर company is not bound. Company does not usually call for the entire amount on the shares subscribed for by shareholders. So the amount which is not called on subscribed shares is called uncalled capital. जिस पे अभी नहीं मांगी रकम तो वो uncalled है, जिस पे कंपनी ने कॉल कर लिया है to pay on shares, हम उसको कहते हैं the called up capital, paid up capital. कंपनी has called, लेकिन अब जिस पे पे भी हुआ, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल अगेंस्ट विच मनी हैज बीन रिसीव्ड, इट इज एक्चुअली दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल which is actually paid by the shareholders. Therefore, it is known as real capital of the company. कंपनी का रियल कैपिटल वो होता है जिसपे कंपनी को पैसा रिसीव हो जाता है। कंपनी ने सब इशू तो कर दिया, लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया, कंपनी ने कॉल भी कर लिया, लेकिन अब कंपनी को जिस पे मनी हैज बीन रिसीव्ड, दैट इज द रियल कैपिटल ऑफ द कंपनी। व्हेनेवर अ पर्टिकुलर अमाउंट इज कॉल्ड and a shareholder fails to pay the amount fully or partially, it is known as unpaid calls or calls in arrear. कंपनी ने कहा कि पैसे इस पे दे दो, नहीं दिए गए, so we call it the unpaid calls or calls in arrears. A company limited by shares can have different kinds of share capital and classes. Kinds and classes are always in accordance with the memorandum of association and articles of association. The rights of the classes only be conferred in the manner prescribed in the rules. A company limited by shares can have different kinds of share capital and classes. Kinds and classes are in accordance with the memorandum of association and articles of association. The right, as I've told you, the rights of the classes only be conferred in manner prescribed in the rules. Then there is a topic, scripless shares. What does it mean? ये जो लफ्ज है स्क्रिप का क्या मतलब है? जब हम स्क्रिप का मतलब जानेंगे तो तभी हमें समझ आएगी कि स्क्रिपलेस शेयर्स क्या होते हैं या स्क्रिपलेस ट्रेडिंग कौन सी ट्रेडिंग होती है। स्क्रिप का मतलब है सर्टिफिकेट, अ रिटन पेपर। स्क्रिपलेस ट्रेडिंग क्या है? जब हम शेयर सर्टिफिकेट के बगैर ट्रेड करें,
उसको हम कहते हैं स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग. वी आर नॉट हैविंग द शेयर सर्टिफिकेट, स्क्रिप्ट नहीं है लेकिन हम ट्रेड कर रहे हैं. इट इज अ टर्म यूज्ड to describe a procedure of trading in shares where the actual share certificates are not traded but the shares are traded in electronic forms. The shares traded being adjusted by accounting by an organization known as depository. So, scriptless trading is always being done without having share certificates, but the shares are traded in electronic forms. What are scriptless shares? Optional for the shareholders of listed companies to keep the shares in physical form. Yani, this is option for the listed companies. They can have the shares in physical form. Scriptless है, share certificate नहीं है, physical form में. Or to deposit those shares with central depository company, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, CDC इसको हम कहते हैं, the central depository company. अब central depository company का क्या काम होता है? The central depository company enjoys the ownership of shares without having script of those shares. script नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं scriptless shares. लेकिन ओनरशिप किसके पास होती है? असल में ट्रस्टी इसमें होता है CDC. CDC क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी. शेयर्स आर केप्ट डिपॉजिटेड इन एन अकाउंट ओपन विद CDC. यानी CDC के पास हम ये शेयर्स रख लेते हैं. क्यों? बिकॉज हेयर द CDC एक्ट जस्ट लाइक अ बैंक फॉर सिक्योरिटीज. The CDC does not own the shares, although securities are registered in the name of CDC. CDC is named as member in the members register, but it does not beneficially own the securities. It is just a trustee. CDC acts as a trustee holding the shares in trust on behalf of the owner of shares. So, यहाँ पर जो CDC है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो है, वो इन शेयर्स को अपने पास अमानत के तौर पे रखती है और इट डज नॉट बेनिफिशियली ओन द सिक्योरिटीज. इट जस्ट एक्ट एज ट्रस्टी होल्डिंग द शेयर्स इन ट्रस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ओनर्स ऑफ द शेयर्स. फुली पेड शेयर्स. Section 91 of the Companies Ordinance 1984 says that no company is allowed to issue partly paid shares. ये एक restriction है जो Section 9 के अंदर लगाई गई है कि कोई भी कंपनी allowed नहीं है कि वो issue करे partly paid shares. Full nominal value of shares should be received by every company. यानी नॉमिनल वैल्यू जो आपने एक कीमत लगाई शेयर की, वो जो फेस वैल्यू होती है वो हर कंपनी बाउंड है कि वो जो फेस वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू है दैट मस्ट बी रिसीव्ड बाय एवरी कंपनी. दिस इज द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 91 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि व्हाट इज अ शेयर. आई हैव क्लियरली डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. उसके बाद मैंने आपको बताया व्हाट इज शेयर कैपिटल, मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन से बताया. इसी तरह शेयर्स की भी बहुत सी डेफिनेशंस मैंने रिपीटेडली आपको बताई. शेयर कैपिटल की कितनी किस्में हैं वो मैंने आपको बताया कि शेयर कैपिटल हमारे पास नॉमिनल और ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है, इशूड कैपिटल होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल होता है. आई हैव टोल्ड यू कि नॉमिनल कैपिटल कौन सा होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू अकॉर्डिंग टू इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन.
इशूड कैपिटल क्या होता है? दैट पार्ट of amount of authorized capital which is offered by the directors or promoters. Subscribed capital क्या होता है? That part of amount of issued capital which is taken by the people. Paid up capital क्या होता है? That part of subscribed capital against which money has been received. और paid up capital को हम real capital कहते हैं क्योंकि इसी पर हमें money receive हो चुकी होती है, पैसा हमारे पास, कंपनी के पास आ चुका होता है। ये मैंने आपको क्लियरली बताया। देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द स्क्रिप्टलेस शेयर्स। स्क्रिप्टलेस शेयर्स कौन से होते हैं? ये वो शेयर्स होते हैं जो कि शेयर सर्टिफिकेट्स के बगैर होते हैं। इट इज द ऑप्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनीज टू कीप द शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म विद देम और विद द or deposit these shares to the CDC, Central Depository Company. And these shares, these scriptless shares are deposited in an account opened with CDC, and CDC acts just like a trustee, and the CDC is like a bank for the securities, and it does not own the shares although the securities are registered in the name of CDC. ये मैंने आपको बताया। और आखिर में मैंने आपको बताया सेक्शन 91 के अंदर कि कोई भी कंपनी अलाउड नहीं है टू इशू पार्टली पेड शेयर्स एंड फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स शुड ऑलवेज बी रिसीव्ड बाय एवरी कंपनी। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज का टॉपिक यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड द एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ irregular allotment? When the money is received for the allotment of shares, but the shares are not allotted, what will happen? Allotment of shares to be dealt on stock exchange, an important topic, and what is the return of allotment. ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो हम अपने अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।